Good morning, dear students. So in previous lecture, I explained Cayley-Hamilton theorem, also how to find characteristic equation for 2 by 2 matrix and 3 by 3 matrix. Okay. So here I take more examples on Cayley-Hamilton theorem. So let us see. State Cayley-Hamilton theorem and verify it. So first of all, we write statement of Cayley-Hamilton theorem. So what is the statement? Previous video में मैंने बताया था आपको Cayley-Hamilton theorem. So here it is asked to write statement. So every squared matrix satisfy its own characteristic equation. Right? Every squared matrix satisfy its own characteristic equation. So this is the statement of Cayley-Hamilton theorem. Then also it is asked to verify Cayley-Hamilton theorem, and also it is asked to find A inverse. Okay, so for this matrix A, first of all we find characteristic equation. Now what is the order of given matrix? So this matrix is of order 3 by 3, and I already told you the characteristic equation for 3 by 3 matrix. Okay, so its characteristic equation is, क्या होता है characteristic equation for 3 by 3? It starts with lambda cube minus s1 into, now we decrease power of lambda by 1, so s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A equals to 0. Right? Now S1 डिनोट करता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना? तो यहाँ पर अपने डायगोनल एलिमेंट्स क्या है देखिए. तो फॉर द गिवन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 1 2, है ना? सो S1 इज 2 plus 1 plus 2 that is equals to 5. Now for S2, so significance of S2 क्या है? S2 डिनोट सम ऑफ माइनस ऑफ, हम किसके माइनस लेते हैं? सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. राइट? सो एंड फॉर टेकिंग दिस माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, I already told you that here we take 3 determinants. This is first one. Okay, so S2 is equals to, क्या है अपना फर्स्ट डिटरमिनेंट? 2 1 0 1 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट आएगा दिस लोअर वन, राइट, दैट इज 1 0 1 2 प्लस थर्ड डिटरमिनेंट के लिए हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? 4 कॉर्नर्ड एलिमेंट्स 2 1 1 2, राइट, which is equals to, now this determinant is 2 plus 2 plus 4 minus 1, that is 3. So S2 is equals to 7, right, and S1 is equals to 5. Now determinant, now we find determinant of A. So with the help of calci we evaluate its determinant. Okay, so if you find its determinant on calci, you will get value 3. Okay, बाद में हमें क्या करना है? ये सभी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे. ओके, एंड देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा अपना? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू क्या मिली हमें? 5. सो माइनस 5 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू कितनी है? 7. सो प्लस 7 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A, और अपना डिटरमिनेंट क्या था? 3. ओके, सो माइनस 3 इक्वल्स टू 0. वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो ये क्या मिला है हमें? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ वी अप्लाई Cayley-Hamilton theorem. Applying Cayley-Hamilton theorem means, what is the Cayley-Hamilton? Every square matrix satisfy its own characteristic equation. तो अपने matrix A satisfy this equation number 2. Okay, therefore by Cayley-Hamilton theorem we get
कैले हैमिल्टन अप्लाई करना मतलब क्या, रिप्लेसिंग लैम्बडा बाय ए इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अपना इक्वेशन आएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस, और हम 3 को सिर्फ 3 नहीं लिखते तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं, 3i इक्वल्स टू 0, डिनोटेड इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब बाद में क्या करना है आपको, कैले हैमिल्टन वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, बट बिफोर कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर। ओके, तो कैलसी पर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, मीन्स वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विथ सेम मैट्रिक्स, है ना। तो ए स्क्वायर आएगा आपका 5 4 4 0 1 0 4 4 5, this is our a square। okay, also with the help of calci we find a cube। अब a cube के लिए आप क्या करोगे, a cube के लिए ये जो अपना a स्क्वायर है, a स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स से, देन यू विल गेट a क्यूब। ओके, तो अपने a क्यूब की वैल्यू आएगी, a क्यूब इज इक्वल्स टू 14 13 13 0 1 0 and 13 13 14। okay, so in this way we find value of a square and a cube using calci। अब क्या करना है, a square a cube की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट अप करना है। ओके, सो वी कंसीडर ओनली इट्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। So LHS is equals to, so left hand side of equation 2, अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा है तभी आपको वेरीफाई करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फॉर वेरिफिकेशन वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो कंसीडर LHS of equation 3। okay, so क्या है अपने LHS, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3 टाइम्स i। ओके, और अब आप हमको कैले हैमिल्टन वेरीफाई करना है, मतलब क्या, वी विल चेक वेदर इट्स वैल्यू इज 0 और नॉट। अगर आपकी ये वैल्यू 0 आती है देन वी से कैले हैमिल्टन थ्योरम गेट सेटिस्फाई, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 0। ओके, सो अपने ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ए क्यूब इज 5 4 4 0 1 0 4 4 5 माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर, सॉरी दिस इज ए स्क्वायर, और ए क्यूब क्या है अपना 14 13 13 0 1 0 13 13 14। ओके, माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 4 4 0 1 0 4 4 5। ओके, प्लस 7a, तो अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स ए क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स था 2 1 1 0 1 0 1 1 2, राइट, माइनस 3i, है ना। सो 3i आएगा अपना, सो माइनस 3 इंटू i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, नाउ इफ यू चेक इट्स वैल्यू, so see 14 minus 25, 14 minus 25 is minus 11, minus 11 plus 14, minus 11 plus 14 आएगा 3। now 3 minus 3 आएगा 0, है ना। so in this way this first element becomes 0। similarly if you check rest of the elements, again we get value 0। okay, so it represent null matrix। क्या represent करता है ये, null matrix, है ना। so if you observe this null matrix 0 is nothing but right hand side of equation number 3।
Okay, so which is equals to RHS of equation 3. So what we get, LHS is equals to RHS, and hence Cayley-Hamilton theorem is satisfied, है ना, Cayley-Hamilton theorem satisfied. ठीक है, ये हो गया अपना वेरिफिकेशन का पार्ट। अब आगे आपको क्या पूछा है, हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। सो हम इनवर्स के लिए क्या करते हैं, कैले-हैमिल्टन अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिला है उसे हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो फॉर ए इनवर्स व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय ए इनवर्स, है ना। अब देखो, अगर मैंने इक्वेशन 3 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, वी गेट ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a प्लस 7a इंटू ए इनवर्स, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया है a इंटू ए इनवर्स क्या मिलता है, i, सो वी गेट 7i माइनस 3i इंटू ए इनवर्स, सो i इंटू ए इनवर्स क्या मिलता है हमें, a इनवर्स. So remember these two facts. Okay, and hence here we get minus 3 into a inverse equals to 0. Okay, अब क्या करना है हमें, a inverse की वैल्यू फाइंड करनी है. So we shift this minus 3a inverse towards another side. So we get 3a inverse equals to a square minus 5a plus 7i, है ना. और फिर से ये 3 अगर मैंने शिफ्ट किया, so a inverse की वैल्यू आएगी 1/3 times this one, right? Now we substitute values of a square, a and I. Okay, so a inverse is equals to 1/3 times. हाँ, so a square की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने a square निकाला है, it is 544 0 1 0 4 4 5 minus 5 times a. अपना a मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, right, plus 7i. I means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so a inverse आएगा अपना, so a inverse is equals to 1/3 times. देखिए अब 5 minus 10, 5 minus 10 is minus 5, minus 5 plus 7 आएगा 2, है ना. Then next element 4 minus 5, 4 minus 5 minus 1, minus 1 plus 0 कितना आएगा, minus 1, right. Then next element 4 minus 5 minus 1 plus 0 आएगा minus 1. Then next element 0. Then 1 minus 5, 1 minus 5 is minus 4, minus 4 plus 7 आएगा plus 3, और यहाँ पर मिलेगा फिर से 0. ओके, इसी तरह अगर मैंने रिमेनिंग एलिमेंट्स भी कैलकुलेट किए, देन वी गेट minus 1. So see, 4 minus 5 minus 1, minus 1 plus 0 is minus 1. सिमिलरली यहाँ पर minus 1 मिलेगा और यहाँ पर 2 मिलेगा. So what is the required inverse? So a inverse is equals to 1/3 into 2 minus 1 minus 1 0 3 0 minus 1 minus 1 2. Okay, so this is the required answer. Okay, so it completes solution. Okay, now we will see the next example. So next example is use Cayley-Hamilton theorem to find the matrix represented by. So here we have given one polynomial of degree 8, है ना, और हमें क्या करना है, using Cayley-Hamilton theorem इस polynomial की हमें वैल्यू निकालनी है in the form of matrix. ठीक है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, Cayley-Hamilton theorem. तो Cayley-Hamilton क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर कैले-हैमिल्टन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, तो मैट्रिक्स
भी अभी सेकेंड एग्जाम्पल लिया था उसमें भी हमने सेम मैट्रिक्स यूज किया था, राइट। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक की प्रोसेस यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो मैं वो उतना पार्ट स्किप करने वाली हूँ, ठीक है। कहाँ तक का पार्ट, कैले हैमिल्टन थ्योरम तक, ठीक है। सो हियर आई डायरेक्टली टेक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। आपको लेकिन वो वाला पार्ट यहाँ तक के लिखना है, ठीक है। सेम होने के कारण मैंने इतना पार्ट स्किप किया, ठीक है। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या मिला था हमें, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। उसके बाद क्या किया था हमने, कैले हैमिल्टन अप्लाई किया था। देयरफॉर बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या मिलता है हमें, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पर आपको इस b के एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है विथ द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8th डिग्री पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखे, अपनी गिवन पॉलिनोमियल जो भी आपको मिली है, ठीक है। तो वो रहेगा अपना डिविडेंड। बाद में हम डिवाइजर के तौर पर कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 की क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्वोशंट क्या मिलता है और रिमाइंडर क्या मिलती है। क्वोशंट और रिमाइंडर क्या मिलती है वो हम देखते हैं, ठीक है। बट वी नो दिस डिविडेंड इज इक्वल्स टू, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम डिविडेंड को, रिमाइंडर प्लस क्वोशंट अपॉन डिवाइजर, है ना। अपनी जो पॉलिनोमियल रहेगी हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रिमाइंडर प्लस क्वोशंट इनटू डिवाइजर, ठीक है। बट अपना डिवाइजर मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। तो अगर इस डिवाइजर की वैल्यू 0 होती है तो ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, 0। मतलब आपको सिर्फ रिमाइंडर की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। देखते हैं हम एक्चुअल में कैसा सॉल्व करना है। सो हियर वी कंसिडर आवर पॉलिनोमियल। So a raised to 8 minus 5a to the power 7 plus 7a to the power 6 minus 3a to the power 5 plus a raised to 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a प्लस क्या है यहाँ पर i, ठीक है। अब ये क्या रहेगा अपना डिविडेंड, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज वी डिवाइड इट बाय a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। अभी डिवीजन कैसे परफॉर्म करनी है देखिए। तो अपना जो डिवाइजर है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, a3, है ना। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, a रेज़ टू 8। सो a क्यूब का अगर मैंने a रेज़ टू 5 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट a टू द पावर 8 एंड दैट्स व्हाई वी टेक डिवाइजर एज a रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब देखो ईच टर्म को हम a टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट a3 इंटू a रेज़ टू पावर 5 इज a रेज़ टू पावर 8 माइनस 5 इंटू a स्क्वायर इंटू a रेज़ टू 5 आएगा a रेज़ टू पावर 7 प्लस 7 इंटू a रेज़ टू 5 क्या मिलेगा, a टू द पावर 6 माइनस 3 इंटू i इंटू a रेज़ टू पावर 5 क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 5। अब जैसे हम डिवीजन में क्या करते हैं
सभी टर्म्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। एंड व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ऑल दीज टर्म्स गेट चेंज, है ना। जैसे a रेज़ टू 8 क्या था यहाँ पर पॉजिटिव, अब क्या बनेगा ये निगेटिव, ये निगेटिव साइन क्या बनेगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन निगेटिव और फिर से यहाँ पर निगेटिव की क्या बनेगी पॉजिटिव, है ना। अब a रेज़ टू 8 गेट कैंसल, -5 a रेज़ टू 7 एंड +5 a रेज़ टू 7 कैंसल हो जाएगी, 7 a रेज़ टू 6 एंड -7 a रेज़ टू 6 कैंसल हो जाएंगे, है ना। तो देखिए a रेज़ टू 8 कैंसल, 5 a रेज़ टू 7 कैंसल, 7 a रेज़ टू 6 भी कैंसल हुआ। अब नेक्स्ट टर्म -3a टू द पावर 5 एंड +3a टू द पावर 5 गेट कैंसल, है ना। सो ऑल दीज टर्म्स गेट कैंसल, सो वी राइट हियर रिमेनिंग टर्म्स। सो क्या है रिमेनिंग टर्म्स, a रेज़ टू 4 -5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर -2a प्लस i। ठीक है, यहाँ तक के कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ डिफिकल्टी है देन वी विल डिस्कस इन आवर गूगल मीट। ठीक है, अब देखिए अपने डिवाइजर में हाईएस्ट पावर a क्यूब, अब हमें कौन सी टर्म चाहिए a टू द पावर 4। तो अगर मैंने a क्यूब को a से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट a टू द पावर 4। यहाँ पर हम पॉजिटिव a ले रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हियर वी राइट प्लस a। अगर आपने निगेटिव a लिया, आपको निगेटिव a नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्या चाहिए सिर्फ पॉजिटिव a टू द पावर 4, है ना। सो दैट्स व्हाई हियर साइन इज पॉजिटिव। अब ईच टर्म को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a रेज़ टू 4 -5a स्क्वायर इंटू a आएगा 5a क्यूब, है ना। नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस 7a इंटू a दैट इज 7a स्क्वायर -3i इंटू a आएगा -3a, राइट। अब फिर से इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज करनी होगी, है ना। अब देखो a रेज़ टू 4 गेट कैंसल, 5a क्यूब -5a क्यूब एंड +5a क्यूब कैंसल, 8a स्क्वायर -7a स्क्वायर, 8a स्क्वायर -7a स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, है ना। -2a प्लस 3a अगर मैंने किया तो क्या आएगा +a, है ना। और यहाँ पर जो i था वो i एज इट इज नीचे कैरी होगा +i, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिली है, रिमाइंडर, दिस वन इज रिमाइंडर, है ना। ये क्या है अपनी रिमाइंडर, ये है अपना डिवाइजर एंड दिस इज आवर क्वोशिएंट, राइट। सो दिस पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो गिवन पॉलिनोमियल इधर के साइड में लिखती हूँ, सो दिस पॉलिनोमियल a रेज़ टू 4 के बाद क्या है टर्म्स प्लस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर -2a प्लस i, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, है ना। तो इक्वल्स टू अपना रिमाइंडर क्या मिला है a स्क्वायर प्लस a प्लस i प्लस क्वोशिएंट क्या है अपना a रेज़ टू 5 प्लस a इंटू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर मतलब जिस टर्म से हमने डिवाइड किया है दैट इज a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 7a -3i। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 0 यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, है ना। तो अगर ये टर्म 0 है तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट ऑल्सो बिकम्स 0, तो सिर्फ क्या बचेगा रिमाइंडर, है ना। सो वी गेट a स्क्वायर प्लस a प्लस i प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0। यहाँ पर रीजन लिखना है बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अब हम a स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कैल से निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था,
है ना। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपनी यूजिंग कैलसी 544010445 राइट। यहाँ पर हमने यूजिंग कैलसी ये वैल्यू निकाली है प्लस ए मीन्स गिवन मैट्रिक्स दैट इज 2 1 1 0 1 0 then 1 1 2 plus I is identity matrix. क्या होता है identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so we evaluate these matrices. We add these three matrices, so we get 5 plus 2 7 plus 1 that is 8. Then 4 plus 1 5 plus 0 that is 5. Again 5. Then 0 1 1 1 that is 3 0. यहाँ पर फिर से हमें मिलेगा 5 5 and 8. So this is value of this big polynomial. Okay. So अगर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम नहीं मालूम रहता था तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे यूजिंग कैलसी. First we find a square, then a cube, a raised to 4, a raised to 5. So it becomes somewhat complicated, right? And that's why here we used Cayley-Hamilton theorem. So आपने देखा ही होगा कि कितनी इजीली हमने Cayley-Hamilton अप्लाई किया. बाद में ये एक्चुअल डिवीजन हमने परफॉर्म की, उसे हमने कैसे एक्सप्रेस किया रिमाइंडर प्लस कोशंट इनटू डिवाइजर. बाद में जो अपना डिवाइजर है उसकी वैल्यू 0 है. सो सिंपली रिमाइंडर हमने इवेल्युएट किया है. Okay, so this is required matrix. Okay, so in this way now see the fourth question. Using Cayley-Hamilton theorem, here we find value of a raised to 8 for the given 2 by 2 matrix. Okay, फिर से Cayley-Hamilton के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है. Okay, so its characteristic equation is तो 2 by 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0. ठीक है, वेयर S1 की वैल्यू आएगी S1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज 1 माइनस 1 इट इज 0. और डिटरमिनेंट आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 minus 1 so it is minus 1 minus 4 that is equals to minus 5. अगर मैंने S1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट अप की तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू 0 होने के कारण ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी राइट प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A. सो प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है माइनस. तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0. वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1. Now by Cayley-Hamilton theorem, Cayley-Hamilton अप्लाई करते मतलब लैम्बडा को ए से रिप्लेस करना है. वी गेट ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर सिर्फ 5 लिखना है क्या नहीं 5i इक्वल्स टू 0. डिनोट इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब क्या करना है आपको कौन सी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है. यहाँ पर एकदम छोटी सी पॉलिनोमियल दी गई है a टू द पावर 8 है ना. अब a टू द पावर 8 को हम डिवाइड करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से. ओके, सो बाय एक्चुअल डिवीजन सो सी a रेज़ टू पावर 8 को हम डिवाइड करेंगे a स्क्वायर माइनस 5i से है ना. अब a स्क्वायर से अगर मुझे a रेज़ टू 8 चाहिए तो मैं यहाँ पर a टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगी. So quotient is a raised to power 6 है ना. अब देखो a raised to 2 into a raised to 6 is a raised to power 8 माइनस 5 into I into a raised to 6 आएगा a raised to 6 है ना. अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस प्लस का होगा माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस a raised to 8 कैंसिल होगा है ना. तो अपने पास क्या बचेगा 5a raised to power 6. अब देखो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से ग्रेटर है तो फिर से हमें डिवीजन करनी है. तो a स्क्वायर को अगर मैंने 5a रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 5a रेज़ टू पावर 6
मतलब क्वेश्चन में क्या लेंगे हम 5a टू द पावर 4। ओके, सो 5a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर मिलेगा 5a रेज टू 6 माइनस 5 इंटू दिस 5 25 I इंटू a रेज टू 4 इज a रेज टू 4। फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के वक्त अगर फिर से क्या करना है, साइन चेंज करेंगे। सो 5a रेज टू 6 गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 25a टू द पावर 4। फिर से इसकी डिग्री 4 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, मीन्स फिर से डिवीजन करनी है। तो a स्क्वायर को हम 25a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट 25a टू द पावर 4। सो यहाँ पर आएगा 25a स्क्वायर। ओके, so we get 25a raised to power 4 minus 25 into 5 is 125, I into this a square is a square। फिर से डिवीजन सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसकी साइन चेंज होगी, 25a raised to 4 कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा 125 into a square। रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री सेम है, इक्वल है। हम ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करते हैं डिवीजन की, टिल डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर, है ना। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होने तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। मतलब हमें फिर से डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो a स्क्वायर को अगर मैंने 125 i से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 125a स्क्वायर। सो नेक्स्ट टर्म क्या लेनी है क्वेश्चन में, प्लस 125 इंटू आई। तो प्लस 125 इंटू आई, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 125 a स्क्वायर माइनस 5 इंटू 125 आएगा 625, i इंटू आई आएगा i, है ना। फिर से सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज, 125 a स्क्वायर कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आएगी 625 इंटू आई। ना अगर आपने ऑब्जर्व किया तो रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर 0 मिली है, मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। मतलब हमें क्या करना है, डिवीजन स्टॉप करनी है, ठीक है। तो अब देखो हम a रेज़ टू 8 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस a रेज़ टू 8 इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर प्लस कोशंट इंटू डिवाइजर, है ना। सो अपनी रिमाइंडर कितनी है 625i प्लस कोशंट क्या मिला है हमें a रेज़ टू 6 प्लस 5a टू द पावर 4 25a स्क्वायर प्लस 125i इंटू डिवाइजर। अपना डिवाइजर मतलब क्या है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5i, है ना, a स्क्वायर माइनस 5i। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5i, इट इज 0। मतलब ये वाली टर्म क्या बनेगी आपकी 0। अगर ये टर्म 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट आल्सो बिकम्स 0। मतलब अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, therefore a रेज़ टू 8 इक्वल्स टू ओनली 625i प्लस 0, है ना। एंड हिंस वैल्यू ऑफ a रेज़ टू 8 क्या आएगी आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में 625 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है अपना a 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो i भी आपको 2x2 ऑर्डर का ही लेना है। तो 1 0 0 1 and hence its value is 625, then 625 into 0 is 0 0 और यहाँ पर फिर से मिलेगा 625। So this is required value of a to the power 8। So I hope आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे यूज करना है वो ध्यान में आया होगा। Okay, so with this I stop my lecture. So thank you very much.